Dear students, I am Dr. Rohini Singh from Government PG College, Ambala, Kent, Haryana. Topic of my talk today is DNA as genetic material. This topic is useful for the students who study genetics as a paper either in botany, zoology, microbiology or genetics in 3-year degree course from various universities and institutes. We all know that every cell has a genetic material. Now, for being a genetic material, any biomolecule must possess certain properties like it must have information, transmission, replication, variation. All these properties are required. These properties are must for any biomolecule to act as a genetic material. We know all the information, genetic information is present in the genetic material that is passed from one generation to another generation, and this information is required to make an entire organism and to do all the functions required, all the physiological actions required in the cell. Next is transmission. Any genetic material has to be passed from one generation to another generation. So the biomolecule which is going to act as a genetic material must possess this property, that it must be capable of transmitting from one generation to another generation. Another most important property is replication. If a biomolecule can replicate and can make its copies so that the one copy remains in the parent cell and the other copy is passed from parent to offspring, only then this biomaterial, this biomolecule can act as genetic material. It must be capable of undergoing variation so that the offsprings or the daughter generations can cope up with the changes in the environment and new species can be formed. So, genetic material has to fulfill all these criteria. It must be capable of information, transmission, replication and variation. Mendel did his experiments on pea plant and his genetic crosses data were consistent with these 4 properties that we have studied just now. However, the chemical nature of the genetic material was unknown until a series of classical experiments by Griffith, Avery et al. And Hershey and Chase Experiment established the fact that DNA is the genetic material. तो जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, जब मेंडल अपने जो है जेनेटिक्स के क्रॉसेस बना रहा था, उस टाइम तक कोई भी ये नहीं जानता था कि जेनेटिक मटेरियल की केमिकल नेचर क्या है, क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है या वो प्रोटीन है. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग प्लेसेस पे अपनी अलग अलग लैब्स में बैठकर, ग्रिफिथ ने किए, एवरी मैक्लियोड एटॉल ने किए, हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट्स हुए. तो लेटर ऑन इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. The experiments that established DNA as genetic material and revealed the true structure of the DNA, these experiments are as follows. Griffith experiment was done in 1928. Then the experiments of Avery, McCarthy and MacLeod, they did experiment in 1944. And in 1947, Chargaff, he did his experiments for the analysis, biochemical analysis of the genetic material. In 1954, Wilkins, Franklin, Watson and Crick, all these scientists from various parts of the world, they did their experiments that contributed to the establishment that DNA acts as genetic material. तो इन सबके experiments ने धीरे धीरे ग्रेजुअली दीज वर डन एट वेरियस टाइम्स. तो इन सबके एक्सपेरिमेंट्स ने लेटर ऑन ये इस्टेब्लिश किया कि जो जेनेटिक मटेरियल की तरह से एक्ट करता है बायोमोलिक्यूल, दैट बायोमोलिक्यूल इज नन बट डीएनए. So we start with the first experiment in this direction that was done by Griffith.
ग्रिफिथ डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये बैक्टीरिया उसने लिया स्ट्रेप्टोकोकस और उसकी स्ट्रेन थी दो स्पीशीज उसकी निमोनियाई थी, दो स्ट्रेन उसने इनकी ली। वन स्ट्रेन वॉज एस स्ट्रेन, इट वॉज पैथोजेनिक स्ट्रेन, एंड अनदर स्ट्रेन वॉज नॉन पैथोजेनिक, इट वॉज कॉल्ड एज आर स्ट्रेन. Now S strain and R strain, they designate S as smooth and R as rough. Now what is this smooth and rough? This is the colony's appearance on the solid media. जो स्मूथ वाली स्ट्रेन थी, एस स्ट्रेन थी, उसकी कॉलोनी सॉलिड मीडिया पे स्मूथ अपीयरेंस बना रही थी, इसलिए उसका नाम एस स्ट्रेन रखा गया. जो आर स्ट्रेन थी उसकी कॉलोनीज की जो अपीयरेंस थी दैट वाज रफ अपीयरेंस ऑन सॉलिड मीडिया, सो दिस स्ट्रेन वाज नोन एज आर स्ट्रेन. नाउ एस स्ट्रेन हैड प्रॉपर्टी दैट इट मे सिक्रीट अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल. वो अपने आसपास पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बना सकती थी, और जो पैथोजेनेसिटी थी, जो इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेबिलिटी थी, वो इस कैप्सूल के अंदर थी. इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरियम फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स. ये जो कैप्सूल है ये ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करता है. एक तो ये इन्फेक्शन कॉज करता है, सेकेंडली ये क्या है, बैक्टीरिया को दूसरे एनिमल्स के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन देता है. जो नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन थी, इट वॉज अनेबल टू सिक्रीट कैप्सूल. ये कोई कैप्सूल नहीं बना सकती थी, इसलिए इसमें कोई भी पैथोजेनिसिटी नहीं थी, नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन थी. इसकी कॉलोनीज की रफ अपीयरेंस थी, और ये कॉलोनी, ये जो स्ट्रेन थी जो है, इट वॉज सेफ स्ट्रेन फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स. नाउ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स with Streptococcus pneumoniae revealed various facts we will study one by one. Let us first study the detail of the experiments, what he did actually with his these two strains. तो उसने सबसे पहले रैट को, माउस को उसने जो है एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में सिलेक्ट किया, एंड देन उसने क्या किया, पहले सबसे स्मूथ स्ट्रेन ले ली. अब एक बात आप क्लियर रखें, जो स्मूथ स्ट्रेन है जिसको हमने एस स्ट्रेन बोला, जो कि पैथोजेनिक स्ट्रेन है, वी कॉल इट एज विरुलेंट स्ट्रेन ऑल्सो. This strain is also known as virulent strain, and another strain that was rough strain, non-pathogenic, it is also known as non-virulent strain. तो ग्रिफिथ ने सबसे पहले क्या किया, जो स्मूथ स्ट्रेन थी, विरुलेंट स्ट्रेन थी, उसको उसने इंजेक्शन में फिल किया, और वो इंजेक्शन उसने माउस को लगाया, क्योंकि जो है उसमें वो क्या थी, विरुलेंट थी. उसने माउस में अंदर जा करके इन्फेक्शन कॉज किया, निमोनिया कॉज किया, और निमोनिया से माउस की डेथ हो गई. दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, जो इंजेक्शन था उसमें उसने नॉन विरुलेंट स्ट्रेन ली. सो दिस हैज़ बिन डिफ्रेंशिएटेड बाय डिफरेंट कलर्स, यू मे सी हियर. जो रेड कलर लिया गया है ये स्मूथ स्ट्रेन को डिपिक्ट कर रहा है, दिस ब्लू कलर इज डिपिक्टिंग रफ स्ट्रेन. तो उसने इंजेक्शन में क्या किया, रफ स्ट्रेन ली जो नॉन विरुलेंट थी, जो नॉन पैथोजेनिक थी. जब उसने माउस को इससे इंजेक्ट किया तो माउस वॉज लाइव, वो सर्वाइव हुआ, उसको कोई निमोनिया नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जो रफ स्ट्रेन थी वो कैसी थी, नॉन पैथोजेनिक, नॉन विरुलेंट, वो निमोनिया कॉज नहीं कर सकती थी, इसलिए माउस वॉज सेफ. देन इन द थर्ड स्टेप what did he do? He did the heat killed smooth strain. उसने क्या किया, heat killed, इसको ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, तो उसने जो स्मूथ स्ट्रेन थी उसको लेकर के उसको उसने हीट किल कर लिया, और उसके बाद में उसने माउस को इंजेक्ट किया, तो माउस की फिर भी डेथ नहीं हुई, निमोनिया उसमें नहीं हुआ. इन द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, रफ स्ट्रेन ली जो कि क्या थी, नॉन विरुलेंट थी, और उसमें उसने क्या मिक्स किया, ये हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, ये इसका कुछ सैंपल उसने यूज़ कर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया उसने. ये दोनों ले लिए उसने, ये ब्लू कलर रफ स्ट्रेन और ये ऑरेंज कलर हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन. उसने इन दोनों को मिक्स किया, और मिक्स करके उसने इसको माउस में इंजेक्ट किया, और उसकी वजह से माउस में दोबारा से निमोनिया हो गया और माउस की डेथ हो गई. तो दिस वॉज द सरप्राइजिंग स्टेज कि जब आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट है, आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट है, वो डेथ कॉज नहीं कर रही है, जो हीट किल्ड है वो भी डेथ कॉज नहीं कर रही है, पर दोनों को जब मिलाया गया तो माउस की डेथ हो गई. तो दिस वॉज अ सरप्राइजिंग रिजल्ट. ग्रिफिथ कंक्लूडेड
दैट समथिंग फ्रॉम द डेड टाइप, जो हीट किल्ड टाइप थे उसमें से कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसने टाइप 2 को ट्रांसफॉर्म किया, कुछ उसमें से चेंज हुआ, कुछ ट्रांसमिट हुआ, जिसने टाइप 2R यानी जो रफ वाली जो एस वाली स्ट्रेन थी, जस्ट लुक एट द बैक, उसने क्या एज्यूम किया, क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ से कोई चीज़ थी जो यहाँ पे गई रफ स्ट्रेन में, और उसने रफ स्ट्रेन को क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, उसको चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट समथिंग फ्रॉम द डेड टाइप, जिसको हमने हीट किल्ड लिया है, वो किसको ट्रांसफॉर्म कर रही है, आर टाइप बैक्टीरिया को इनटू एस टाइप। तो आर टाइप के बैक्टीरिया को उसने एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट वाज दैट समथिंग वाज स्टिल हिडन। ही कॉल्ड दिस प्रोसेस एज ट्रांसफॉर्मेशन। और जो भी सब्सटेंस था जिसने इस जो आर वाली टाइप को एस वाले टाइप में कन्वर्ट किया, दैट सब्सटेंस वाज टर्म्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। बट व्हाट वाज दिस सब्सटेंस एक्चुअली was not established by these experiments. Griffith did not know what it was. He suggested that genetic information molecule is resistant to high temperature. इतना high temperature की heat kill करने के बाद भी वो destroy नहीं हुआ. Some scientists speculated that protein could also be that transformation principle. Nucleic acids too were the candidates though. अब उस टाइम तक क्योंकि जो है बायोकेमिकल नेचर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की इस्टेब्लिश हो चुकी थी, आइडेंटिफाई हो चुके थे, जैसे न्यूक्लिक एसिड आइडेंटिफाई हो गए थे, प्रोटीन्स आइडेंटिफाई हो गई थी, कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफाई हो गई थी, तो देयर वर डिफरेंट स्पेकुलेशंस बाय द साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट का मानना ये था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, जो चेंज कर रहा है, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसको आर टाइप को स्मूथ टाइप में कन्वर्ट कर रहा है, वो कुछ और नहीं है बल्कि प्रोटीन है। बट जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका ओपिनियन ये था कि नहीं, हो सकता है वो न्यूक्लिक एसिड भी हो। तो देयर वर स्टिल इट वाज टू बी डिसाइडेड कि वो क्या था जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट वाज प्रोटीन और इट वाज न्यूक्लिक एसिड। देन केम एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी. They realized that Griffith's observations could be used to identify the genetic material. So they started their experiments in 1940s, 44 में उन्होंने अपना experiment start किया. At that time, it was known that DNA, RNA, proteins and carbohydrates are the major constituents of the living cell. तो सेल के अंदर ये सारे जितने भी बायोमोलिक्यूल, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे प्रेजेंट हैं एज constituents in the living cell. This fact was established. Now the question was कि इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है। दिस वाज द क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन बिफोर ऑल द साइंटिस्ट कम्युनिटी. सो डिफरेंट scientists did different experiment to establish their fact. Now, in the same direction, Avery, MacLeod and McCarthy, they prepared cell extracts from type S, जो स्मूथ वाली थी, हीट किल्ड स्मूथ टाइप वाली जो सेल्स थी, उसका उन्होंने जो है सेल एक्सट्रैक्ट किया और उन्होंने उसमें से प्योरीफाई किए सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को। जैसे उन्होंने प्योरीफाई किया डीएनए के सैंपल को, और फिर डीएनए के सैंपल को उन्होंने जब जो है इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि जो आर बैक्टीरिया थे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे एस में। ट्रीटमेंट ऑफ द डीएनए एक्सट्रैक्ट विद आरएनएज और प्रोटीएज डिड नॉट एलिमिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने पहले डीएनए का एक्सट्रैक्ट बनाया और डीएनए के एक्सट्रैक्ट में उससे उन्होंने उसको आरएनएज के साथ में ट्रीट किया। आरएनएज क्या है? ऐसा एंजाइम जो आरएनए को किल करेगा। तो डीएनए के एक्सट्रैक्ट में जितना भी आरएनए था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। सिमिलरली उन्होंने उसको प्रोटीएज के साथ में भी टेस्ट किया, ट्रीट किया। प्रोटीएज में जो है, प्रोटीएज क्या है? ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डैमेज करता है। तो वो प्रोटीन अगर उसमें प्रेजेंट थी तो वो भी सारी उसमें डिस्ट्रॉय हो गई। नाउ द एक्सट्रैक्ट वाज लेफ्ट प्योरली विद द डीएनए एक्सट्रैक्ट। और जब इस एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया गया एस टाइप के सेल्स, आर सेल टाइप, आर जो रफ वाली स्ट्रेन थी उसको
ट्रांसफॉर्म करने के लिए एस में, तो इट कुड बी डन सक्सेसफुली। जो ट्रांसफॉर्मेशन थी जो है वो इजीली हो गई और जो आर स्ट्रेन थी वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई। बट जब इसी एक्सट्रैक्ट को उन्होंने डीएनएज के साथ में, डीएनएज क्या है, ऐसा एंजाइम जो डीएनए को डैमेज करता है, जब उन्होंने उसको डीएनएज के साथ में ट्रीट किया तो उसके बाद जब उन्होंने उस एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस एक्सट्रैक्ट में डीएनए डैमेज हो गया था डीएनएज एंजाइम डालने की वजह से। फ्रॉम हेयर दे कंक्लूडेड कि डीएनएज जो है वो जब डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है तब तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, पर जब डीएनए एक्सट्रैक्ट में हम आरएनएज को डालते हैं या प्रोटीएज को डालते हैं और क्योंकि ये डीएनए को डैमेज नहीं कर सकते, डीएनए जो है वो इंटैक्ट रहता है, तो ऐसे में डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बायोमॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ डीएनए नॉट आरएनए एंड प्रोटीन। So, the experiment of Macquarie's transformation can be explained like this. Hypothesis of the experiment was the genetic material of the cell is either protein और न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में से भी कौन सा, इधर इट में भी डीएनए और आरएनए। तो उन्होंने क्या किया, सेल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया, एस वाली टाइप से उन्होंने सेल एक्सट्रैक्ट बनाया, उसमें से उन्होंने लिपिड्स रिमूव कर दिए, शुगर रिमूव कर दी, और जो है जो वो एस सेल का जो अब हीट किल्ड वाला एक्सट्रैक्ट था उसमें सिर्फ क्या था, प्रोटीन थी, आरएनए था और डीएनए था। इसमें से जो है उन्होंने लिपिड बाहर निकाल दी, शुगर बाहर निकाल दी, सिर्फ इसमें जो है क्या रहा, उन्होंने लिविंग सेल लिए, लिविंग सेल्स को उन्होंने हीट किल किया, हीट किल करने के बाद में लिविंग सेल कौन से लिए, एस स्ट्रेन के, स्मूथ स्ट्रेन, जो कि कैसी थी, विरुलेंट स्ट्रेन थी। इसको उन्होंने लिया, हीट किल किया, इसका एक्सट्रैक्ट बनाया, इस एक्सट्रैक्ट में से लिपिड और शुगर को रिमूव कर दिया। अब इस एक्सट्रैक्ट में सिर्फ क्या है, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है। इस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में ले लिया। एक में उन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम डाला, तो प्रोटीनेज एंजाइम ने क्या कर दिया, अगर इस एक्सट्रैक्ट में कोई भी प्रोटीन थी उसको डैमेज कर दिया, तो यानी अब इसके अंदर जो है कोई प्रोटीन नहीं है। यहाँ उन्होंने आरएनएज डाला, आरएनएज एंजाइम ने क्या किया, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, सो दैट इस एक्सट्रैक्ट में कोई भी आरएनए नहीं है। इन थर्ड केस उन्होंने डीएनएज डाला, जब उन्होंने डीएनएज डाला तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट में कोई भी डीएनए नहीं रहा, तो अब उन्होंने इसको फ्लास्क में लिया, उस फ्लास्क में उन्होंने आर सेल डाले जो कि कैसे थे, रफ जो सेल्स थे, जो नॉन पैथोजेनिक सेल्स थे। जब उन्होंने यहाँ से इस वाले में से एक्सट्रैक्ट डाला इसमें, तो जो लिविंग सेल्स थे एस वाले जो हैं वो अपीयर हुए, उनको जो है उनमें जो है यानी आर सेल जो है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे प्रोटीन नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन का तो कोई रोल नहीं था इनको एस टाइप में कन्वर्ट करने में। दूसरे केस में क्योंकि इसमें आरएनए नहीं था, तो यहाँ पे जब उन्होंने आर सेल डाले तो देवर ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू एस सेल, वो ट्रांसफॉर्म हो गए किस में, एस सेल में। तो यहाँ पे क्योंकि आरएनए नहीं था, आरएनए वाज एब्सेंट, ओनली यहाँ पे क्या था, डीएनए थी और प्रोटीन था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है प्रोटीन, तो इधर उन्होंने देख ही लिया, प्रोटीन को चेक कर लिया, यहाँ पे उन्होंने आरएनए को चेक किया कि आरएनए का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस एक्सट्रैक्ट में आरएनए प्रेजेंट नहीं है, तो दे एस्टेब्लिश्ड कि आरएनए का कोई रोल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन में। यहाँ फर्स्ट वाले स्टेप में क्या एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि प्रोटीन यहाँ खत्म हो चुकी थी, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोटीन का कोई रोल नहीं था। तो सस्पेक्शन जो है 2 ही चीज़ों पे थी, किस किस पे, एक डीएनए पे और एक आरएनए में। दूसरे सेट में उन्होंने आरएनए को भी एलिमिनेट कर दिया, जब उन्होंने आरएनए को एलिमिनेट कर दिया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, इसका मतलब आरएनए का भी कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर सेल जब डाले तो उससे पहले उन्होंने डीएनएज वाला, वो वाला स्टेप जहाँ पे उन्होंने डीएनएज डाला तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ जब उन्होंने आर सेल डाले तो दे ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पे कोई एस सेल अपीयर नहीं हुए, क्योंकि कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्यों
नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे जो है उन्होंने डीएनए डाला था, डीएनए डैमेज हो गया। ऑल्दो इसमें प्रोटीन भी थी, इसमें आरएनए भी था, पर यहाँ डीएनए नहीं था और डीएनए ना होने की वजह से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है। दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय देयर फर्स्ट 2 स्टेप्स, क्योंकि जब प्रोटीन नहीं थी तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जब आरएनए नहीं था तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बट जब डीएनए नहीं था तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो this made them to conclude that only DNA can transform the R type into S type. So it was established that DNA is the genetic material. Then came in picture Hershey and Chase. In 1952, Alfred Hershey and Martha Chase, they provided further evidence that DNA is the genetic material. Although it was established by Avery, McLeod and McCarthy, but later on 1952 में हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किए बैक्टीरियोफाज T2 के ऊपर, जिससे ये फाइनली कंक्लूड हो गया, इस्टेब्लिश हो गया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल एंड नो प्रोटीन, no RNA, no lipid, no carbohydrate, etc. have any role as genetic material. Only DNA is the genetic material. We will see in the experiment how did they perform this experiment. Now, what is bacteriophage? Before I go further, bacteriophage is any virus that attacks on bacteria, that kills bacteria. So it is relatively simple since it is composed of only 2 macromolecules, DNA and protein. उन्होंने बैक्टीरियोफाज T2 को क्यों सिलेक्ट किया? बैक्टीरियोफाज को सिलेक्ट करने का जो पर्पस था, दैट वाज ओनली टू डिसाइड कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है, क्योंकि तब तक जो है बाकी सारे नलीफाई हो चुके थे. द डिबेट वाज बिटवीन ओनली डीएनए एंड प्रोटीन. सो दे टुक बैक्टीरियोफाज, क्योंकि उसमें 2 ही मेजर मैक्रोमोलिक्यूल हैं, डीएनए है और प्रोटीन है. सो दे डिसाइडेड टू कंक्लूड थ्रू दिस बैक्टीरियोफाज की जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है. तो ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है. यू मे सी हियर, दिस इज द हेड, कैप्सिड हेड है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट. और ये जो बाकी शीट, टेल फाइबर, ये सारा पार्ट जो है ये प्रोटीन का बना हुआ है. ये पार्ट सिर्फ जो है वो डीएनए का बना हुआ है, और इसमें भी बाहर जो कैप्सिड है वो प्रोटीन है, अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. दे यूज्ड रेडियो आइसोटॉप, उन्होंने रेडियो आइसोटॉप्स यूज़ किए टू डिस्टिंग्विश डीएनए फ्रॉम प्रोटीन्स. की बैक्टीरिया के ऊपर जब बैक्टीरियोफाज अटैक करेगा तो बैक्टीरिया के अंदर जो भी जा रहा है वो डीएनए जा रहा है या प्रोटीन जा रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो डीएनए कर रहा है या प्रोटीन कर रहा है. इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने डीएनए को भी लेबल कर दिया और प्रोटीन को भी लेबल कर दिया. अब डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस. फॉस्फोरस जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होती है. सिमिलरली सल्फर जो है वो डीएनए के अंदर कहीं भी प्रेजेंट नहीं होती, सल्फर सिर्फ जो है प्रोटीन में प्रेजेंट होती है. तो दे पिक्ड अप दीज 2 मॉलिक्यूल, इन्होंने दोनों ये ले लिए, और डीएनए जब उन्होंने लिया तो वहाँ उन्होंने फॉस्फोरस को लेबल कर दिया, राइट. 32 फॉस्फेट उन्होंने यूज़ किया, और प्रोटीन में उन्होंने 35S को लेबल कर दिया. तो इस तरह से अब दोनों जो है वो रेडियो आइसोटोप वाली जो है फॉस्फेट डीएनए में और रेडियो आइसोटोप वाली जो सल्फर है वो प्रोटीन में प्रेजेंट थी. दे अलाउड लेबल्ड वायरसेस टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया. अब उन्होंने जब ये लेबल्ड वाले जो हैं डीएनए और प्रोटीन वाले जो वायरसेस थे, इनको उन्होंने जो है यूज़ किया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए. And they made a question, where are the radioactive labels after infection? कि इन्फेक्शन के बाद में जो रेडियो एक्टिव लेबल्स हैं वो कहाँ गए, वो अंदर थे या वो बाहर थे. तो in their first set of experiment, Hershey and Chase labeled the DNA of phage with radioactive phosphorus 32. This element phosphorus is present in DNA but not present in any of the 20 amino acids from which proteins are made. So we know that protein, that polypeptide is made up of amino acids, and there are 20 amino acids, and in none of the 20 amino acid phosphorus is present. Phosphorus किसी भी amino acid में नहीं होती है.
तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, दे अलाउड द फाजेस टू इन्फेक्ट ई कोलाई। उन्होंने बैक्टीरिया ई कोलाई लिया और ये T2 फाज जहाँ पे उन्होंने डीएनए को 32P से लेबल किया था, उससे उन्होंने उसको इन्फेक्शन करवाया। एंड थ्रू सेवरल एलिगेंट एक्सपेरिमेंट्स they were able to observe the transfer of P32 labeled phage DNA into the cytoplasm of bacterium। तो बाद में जब उन्होंने चेक किया इन्फेक्शन के बाद में बैक्टीरिया को, तो उन्होंने क्या पाया कि जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो डीएनए है वो 32P लेबल्ड वाला डीएनए प्रेजेंट है। In their second set of experiments, they labeled the phages with radioactive sulfur 35 सल्फर के साथ में उन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फर 35 के साथ में उन्होंने प्रोटीन को ट्रीट किया। और जो सल्फर है इट इज़ फाउंड ओनली इन द अमाइनो एसिड्स, नॉट इन डीएनए। ये जो है प्रोटीन के अंदर मिलती है, कुछ अमाइनो एसिड जैसे सिस्टीन है, मिथियोनाइन है, ये जो है अमाइनो एसिड, इनमें सल्फर प्रेजेंट होती है। एंड ऑल यू नो दैट मिथियोनाइन क्या है, वो इनिशिएशन कोडॉन है। तो हर पॉलीपेप्टाइड में, हर प्रोटीन में मिथियोनाइन प्रेजेंट होगा। तो मिथियोनाइन का प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, सल्फर प्रेजेंट है। तो इसलिए उन्होंने 35 सल्फर वाला जो है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड सल्फर को यूज़ किया। अब क्योंकि सल्फर डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती है, तो अगर कहीं पे S35 वाली लेबल्ड सल्फर मिलती है तो इट वुड बी इस्टेब्लिश कि वहाँ पे प्रोटीन है, डीएनए नहीं है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस S35 लेबल्ड सल्फर वाला जो T2 फाज था उससे उन्होंने ई कोलाई के ऊपर अटैक कराया। And following the infection of E. coli, they sheared the viral protein shells of infected cells using a high-speed blender and separated the cells and viral coats by using a centrifuge। तो इन्होंने जो है ब्लेंडर और सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से उन्होंने जो इन्फेक्टेड सेल्स थे उसमें से जो प्रोटीन शेल्स जो बैक्टीरिया के बाहर ही पड़ी हुई थी उनको सेपरेट कर दिया। मीन्स वी ऑल नो कि जब भी जो है फाज अटैक करता है तो सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है, बाकी जितना भी पार्ट है उसका वो बाहर रह जाता है। तो जब उन्होंने अटैक करवा दिया ई कोलाई को इस T2 फाज में जिसमें 35S लेबल्ड था, तो जब इन्फेक्शन के बाद में उन्होंने सेपरेट किया, जो जितना बाहर का मटेरियल था उसको सेपरेट कर दिया और जो इन्फेक्टेड सेल थे उनको उन्होंने सेपरेट कर दिया। आफ्टर सेपरेशन radioactive S35 tracer was observed in the protein shells जो कि बाहर रह गए थे, but not in the infected bacterium। अब जो infected बैक्टीरिया था उसके अंदर उनको साइटोप्लाज्म में कहीं भी रेडियो एक्टिव लेबल्ड S35 मतलब रेडियो एक्टिव वाली सल्फर उनको कहीं नहीं मिली। उनको जो है वो कहाँ पे मिली, प्रोटीन शेल्स में, जो कि कहाँ थे, बाहर रह गए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियरली ये इस्टेब्लिश हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था वो डीएनए था, ना कि प्रोटीन। इसका मतलब क्या है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो जाती है वो डीएनए लेकर के जाता है, प्रोटीन नहीं लेकर के जाता। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। लेट अस सी हाउ दे परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट हियर। In 2 steps the experiment has been shown. Bacteriophage was taken. In first experiment we have depicted it with the red color. यहाँ पे उन्होंने 35S के साथ में इसको लेबल कर दिया, 35S के साथ में लेबल किया। अब S जो है कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटीन के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे लेबल कौन सा पार्ट हुआ, प्रोटीन हुई। जब इस फाज ने बैक्टीरिया के ऊपर, ई कोलाई के ऊपर अटैक किया तो जब अंदर गया वो जेनेटिक मटेरियल गया, जो बाहर प्रोटीन वाला पार्ट था वो बाहर रह गया। तो जब उन्होंने सेपरेशन की और जो है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जब उन्होंने जो है ट्रेसर टेक्निक की हेल्प से रेडियो एक्टिविटी को जब उन्होंने फाइंड आउट किया तो दे फाउंड कि जो सेल के अंदर था, सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, पर जो रेडियो एक्टिविटी वॉज ऑब्जर्व्ड आउटसाइड, जहाँ पे प्रोटीन्स थी जो है वहाँ पे उन्होंने रेडियो एक्टिविटी देखी। तो एक तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड हो गया कि जो अंदर जाता है वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाता है, प्रोटीन बाहर रहती है।
ठीक है। और दूसरी बात यहाँ से क्या एस्टेब्लिश हो गया कि जो बाहर रह रही है, वो जो बाहर है मतलब एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, एक बायोमॉलिक्यूल बाहर ही रह रहा है, क्योंकि दो ही बायोमॉलिक्यूल हैं। तो जो बाहर रह रहा है, जब उन्होंने वहाँ पे उसकी रेडियो एक्टिविटी चेक की उन्होंने ट्रेसर टेक्निक की हेल्प से, तो दे फाउंड कि जो बाहर है वो S35 वाला है। S35 वाला प्रोटीन है, इसका मतलब प्रोटीन बाहर रहती है, अंदर उन्हें कोई भी जो है रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जहां उन्होंने फॉस्फोरस को लेबल किया था 32 से, अब फॉस्फोरस बिकॉज इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए में जो है फॉस्फेट ग्रुप एसेंशियली प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने जब अटैक कराया इस तरह के T2 फाज से बैक्टीरिया के ऊपर इकोलाई पे, तो दे केम टू नो कि अंदर भी उनको आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन उनको जो है जब उन्होंने सेपरेट कर लिया सारा, तो उनको साइटोप्लाज्म के अंदर तो रेडियो एक्टिविटी मिली, बाहर कहीं नहीं मिली। जो बाहर जो पार्ट रह गया था, जब उसका उन्होंने केमिकल एनालिसिस किया ट्रेसर टेक्निक की हेल्प से, जब उन्होंने रेडियो एक्टिविटी फाइंड की, तो उनको बाहर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। इनफैक्ट उनको इकोलाई के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर उनको जो है रेडियो एक्टिविटी मिली। तो फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स दे कंक्लूडेड कि जो डीएनए है दैट ओनली गोज इनसाइड द बैक्टीरिया, वो सिर्फ अंदर जाता है, प्रोटीन नहीं जाती है। इसलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है? डीएनए। सो इट वाज कंफर्म्ड नाउ कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन it is concluded what biomolecule is genetic material. So I summarize the topic. Protein, RNA and DNA were thought as genetic material, but many experiments like Griffith experiment, Avery, McCarthy experiments and finally experiment of Hershey and Chase suggested DNA as genetic material rather than protein and RNA. So I hope you have understood the concept how DNA was established as genetic material. There are few questions, MCQ type questions. You may test your knowledge through these questions. If you find any doubt, you may go back to the slides and find out the correct answer. The first question is, genetic material must have following criteria: information, replication, transmission, all of these. Which of the following experiments established DNA as genetic material? कौन से experiments से पता लगा कि DNA genetic material है? Griffith, Avery, Chargaff, all of these. Griffith did his experiments on Streptococcus pneumoniae, Diplococcus pneumoniae, none of these or both of these. You have to choose the right answer. What is true about S strain? S strain can secrete polysaccharide capsule. It protects bacterium. It produces smooth colonies, or all of these. The process that occurred in Griffith's experiment was named as replication, inversion, translocation, or transformation. Next question is, treatment with dash eliminated transformation in every MacLeod experiment. किसके साथ में ट्रीटमेंट किया था? डीएनएस, लाइपेस, प्रोटीएस, आरएनएस। कि कौन सा ऐसा बायोमॉलिक्यूल, कौन सा ऐसा जो है सेल एक्सट्रैक्ट था जिसको जो है इनमें से जो है कौन से एंजाइम के साथ में ट्रीटमेंट करने के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं हुई थी? इनमें से कौन से वाले के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गई? ये आपने एग्जैक्ट इसमें से कौन सा एंजाइम है उसको फाइंड आउट करना है। In Hershey and Chase experiment, 32P was labeled in DNA, 32P labeled in protein, 35P was labeled in DNA, or 35P was labeled in protein. So you have to find out the right answer. The element phosphorus is present in DNA, present in protein, or in amino acids, or all of these. Next question is, in most of the organism, the genetic material is DNA, protein, RNA, or none of these. Last question is, which of the following was established as genetic material by Mendel's law? DNA, protein, RNA, none of these. Mendel ने किसको genetic material establish किया था? तो you have to choose the right answer from here. So this is all about this topic.
All the best and thank you so much.